Dear students, today we discuss about the path, or we can say walk. Path or walk of a graph G is an alternating sequence of the vertices and edges v0, e1, v1, e2 up to vn minus 1 en, vn, beginning and ending with the vertices in which each edges is incident with the two vertices immediately preceding and following. That means path start from the vertices and it join the edges. Two vertices are joined with the edges. अगर हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये पार्ट है यहाँ पे, तो सपोज कि ए और ए से बी पे जाने के लिए मुझे एक एजिस की जरूरत पड़ती है E2, तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे ए E2 बी. बी से मुझे सी तक जाना है तो ए E2 बी के बाद E3 सी, देन E6 ई, देन E7 डी, देन आई गो फ्रॉम E8 एफ, E10 जी. सो ए से जी जाने के लिए मैंने जो पार्ट सिलेक्ट किया है वो कौन सा हो गया? ए E2 बी, E3 सी, E6 ई, E7 डी, E8 एफ and E10 G. This is called a path. So starting is vertices and ending with the vertices, and it's joining all vertices. Edges are joining the all vertices. Here V0 and Vn, the starting and ending part, ending vertices. Okay, these are called end vertices. A0 and G is called end vertices here in this part. And the another vertices B, C, E, D, F are called a interior vertices. So in this part, if I says that V0, E1, V1, E2, so V0 and Vn are the end vertices, and the another vertices V1, V2 up to Vn minus 1 is called the interior vertices. If V1 and V0 and Vn both are same, so ending vertices are same, that means the starting vertices and end vertices are same, and that is called a closed path. And otherwise it is called open path. So when we go from A to G, that it is called open path. But I go from the A to A, that is if start from A, E1 C, E3 B, E2 A. So again I start from A and end at A. So another part I create here A, E1 C, E3 B, E2 A. So starting and ending vertices are same, so it is called closed path. Otherwise it is called open path. And this closed path is known as circuit. So you have to remember what is the circuit. So I read them some other part here, that I go from A, E2 B, E5 D, E9 F, and then E10 G. So there are so many parts you get from A to G. Okay, so these are the different part that we discuss here. Now I again discuss about the simple part. Okay, so in the simple part, what is the simple part? A part in the graph G is called simple part if the edges do not repeat in the part. अगर उस पाथ में अगर आपकी एजिस रिपीट नहीं हो रही है, एक ही पाथ के अंदर अगर आपकी एजिस रिपीट हो रही है, एक से ज़्यादा बार वही एजिस आ रही है, then it is not called simple path. But in simple path there is no edges repeated. जो हमने आगे जब पाथ देखा उसमें भी कहीं पे भी एजिस रिपीट नहीं हुई. यहाँ पे मैंने दो पार्ट ड्रॉ किए हैं. पहला पार्ट है A, E1 B, E2 C, E3 D, E4 E, E6 F, E7 G, E8 H. So this is my first part, and I draw second part, that A, E1 B, E5 E, E6 F, E7 G, E8 H. So this is my second part. In both part you can see that no edges are repeated here, so that's why it is called simple part. Now similarly we discuss about the elementary part. Elementary part means when the edges are repeated, vertices are repeated, then it is not elementary part. But when vertices are not repeated, then it is called a elementary part. So in simple part no edges are repeated, in elementary part no vertices are repeated. So a part is said to be elementary part if vertices do not repeat in the part. अगर आप इस दोनों पाथ को देखो तो दोनों पाथ के अंदर
no vertex is repeated, so they are called elementary part. Similarly, simple circuit. Simple circuit means no edges are repeated, so include the same edges are not twice in the. If you see this, if I say some circuit here, so look at here. If I start from the B, E2 C, E3 D, E4 E and E5 B, so B से वापस B तक जाने में मुझे एक भी एजिस रिपीट नहीं हुई, एक भी एजिस रिपीट नहीं हुई. मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? B से स्टार्ट किया, E2 C, E3 D, E4 E, E5 अगेन B. सो इट सर्किट, ये सर्किट तो बना लेकिन उस सर्किट के अंदर एक भी एजिस रिपीटेड नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंपल सर्किट. ये आपका एग्जांपल हो गया सिंपल सर्किट का. नाउ सिमिलरली वी गो फ्रॉम द, मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया है सिंपल सर्किट के रिलेटेड. सो यू कैन सी दैट ए E1 B E2 C E3 और वापस A तक पहुंच गए, तो इट इज कॉल्ड सिंपल सर्किट. मैं उसी तरह से मैंने A E8 D E4 इस तरह से वापस आया हूँ, तो वो भी एक एलिमेंट्री सर्किट हो गई, सॉरी सिंपल सर्किट हो गई. नाउ एलिमेंट्री सर्किट क्या है? अगर सर्किट है तो फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स तो रिपीट होगा ही, लेकिन उसके अलावा जितने भी अंदर के इंटीरियर वर्टेक्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए. सो देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री सर्किट. एलिमेंट्री पार्ट क्या था हमारा कि एक भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री पार्ट. लेकिन सर्किट है तो फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स तो सेम ही रहेगा. सो अगर मैं एक ग्राफ लूं यहाँ पे A E1 B E2 C E7 E, वहाँ से E5 करके D से वापस E4 करके C पे आता हूँ और वापस मैं यहाँ पे E3 करके A तक जाता हूँ. तो A से मैंने जो स्टार्ट किया था लेकिन C वहाँ पे डबल बार क्रॉस हो गया. सो C इज रिपीटेड 2 टाइम्स. A तो एंड वर्टेक्स है तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो तो होगा ही, वो सर्किट है इसलिए. बट इसके अंदर के जो इंटीरियर वर्टेक्स है, जो C है, इंटीरियर वर्टेक्स कौन कौन से? B C D एंड E, 4 इंटीरियर वर्टेक्स है, तो चारों में से C 2 बार रिपीट हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट अ एलिमेंट्री सर्किट. Now we discuss about the reachability. Reachability का मतलब होता है a vertex V of a simple digraph is said to be reachable from the vertex U of the same digraph if there exists a path from U to V. अगर दोनों के बीच में कोई पाथ है, A to C के बीच में ये पाथ है, तो इट इज रीचेबिलिटी हो गई कि भाई वहां तक वो पहुंच सकता है, A to D तक वो पहुंच सकता है, A to E होके वो C तक जा सकता है, B से A होके E तक जा सकता है, या B से C होके E तक. तो ये सारे उसके पाथ, अगर दोनों के बीच में कोई पाथ मिलता है तो इट इज कॉल्ड रीचेबिलिटी. नहीं वो वहां तक जा सकता है. सो देयर इज अ पाथ बिटवीन U एंड V, दैट इज कॉल्ड अ रीचेबिलिटी. नाउ जियोडेसिक का मतलब होता है अगर आपका वर्टेक्स V is reachable from U, vertex U, and then path of minimum length from U to V is called geodesic. Look at here. If I grow from A to C, I have 2 parts. One part is A E1 B E2 C, and another part is A E3 C. Another part is A E6 E7 E7 C. और आई कैन ग्रो फ्रॉम A E D A F 4 के जगह भी C. मतलब कि A से C तक जाने में बहुत सारी रीचेबिलिटी है, वो बहुत सारे पाथ्स हैं मेरे पास. उस पाथ में से जो मिनिमम लेंथ है, जो मिनिमम लेंथ का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड जियोडेसिक. जो E3 से डायरेक्ट E3 जाता है वो मिनिमम पाथ हुआ है, सो इट इज कॉल्ड जियोडेसिक. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? The length of the geodesic from the vertex U to V is known as a distance. यानी इसकी लेंथ कितनी है? So it is called distance. So अगर A पॉइंट से A पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. उस पॉइंट से उसी खुद के पॉइंट का डिस्टेंस तो 0 होता है. A से C का पॉइंट का डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. यानी डिस्टेंस ऑफ U कॉमा V इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस ऑफ U कॉमा U इज ऑलवेज इक्वल टू 0. And here also triangular inequality exists. So d of U comma V is less or equal to d of U comma W plus d of U comma V. जैसे कि यहाँ पे एक triangular inequality बनती है, जैसे कि A to C है, अगर A to B plus
distance of A to B plus distance of B to C is always greater than distance of A to C. So that is called a triangular inequality. Now we discuss about the connected graph and disconnected graph. Now just look at a connected graph. A graph is connected if every pair of vertices are joined by a path, otherwise the graph is disconnected. अगर सारे पॉइंट्स जॉइंट है एक दूसरे से देन इज कनेक्टेड. अगर मुझे A to C तक जाना है तो मैं आराम से जा सकता हूँ, मतलब कि वो ग्राफ क्या हो गया, कनेक्टेड ग्राफ हो गया. नाउ अगर सारे पॉइंट्स पे कोई पॉइंट नहीं जा सकते हो मैं, सपोज कि यहाँ पे एक अलग पॉइंट होता जो उनके बीच में कोई एजिस नहीं है उसके साथ, सो दैट इज कॉल्ड द डिसकनेक्टेड ग्राफ. A directed graph is said to be connected if the undirected graph derived from by ignoring the direction of the edges is connected and is said to be disconnected otherwise. So directed graph means if the direction is given in the graph then it's called directed graph. और वो भी ऐसे होने चाहिए कि उससे अनडायरेक्टेड ग्राफ भी हमें मिले. अगर मैं उसके डायरेक्शन निकालूँ तो मुझे एक अनडायरेक्टेड ग्राफ भी मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो डिसकनेक्टेड हो. ओके, अदरवाइज वो disconnected graph हो जाएगा. A disconnected graph consists of two or more component each of which is connected graph. अगर एक disconnected graph है तो अगर मैं जहाँ से वो डिसकनेक्ट हो रहा है वो वहाँ से अगर मैं उसको अलग अलग कर दूँ तो वो दो अलग अलग ग्राफ हो जाएंगे. ओके, डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा समझ के यहाँ पे कोई एक वर्टेक्स और एक्स्ट्रा वर्टेक्स मैंने ले लिया तो ये एक अलग ग्राफ हो जाएगा और ये अलग ग्राफ हो जाएगा. सो डिसकनेक्टेड ग्राफ में दो और उससे ज़्यादा कनेक्टेड ग्राफ मिल सकते हैं, अलग अलग कनेक्टेड ग्राफ मिल सकते हैं अगर डिसकनेक्टेड है तो. अ डायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी स्ट्रांगली कनेक्टेड इफ एवरी टू वर्टेक्सेस A and B इन द ग्राफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम A to B एज वेल एज B to A. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. यू कैन सी दैट A से B के लिए ग्राफ एज अ डायरेक्शन है, B to A के लिए हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कैसे B to A तक जा सकते हैं, तो B to C, C to E और E to A, तो एक और पाथ मिलता ही हमें जिससे हम B to A तक जा सकते हैं. ऐसे एवरी वर्टेक्स के लिए मिलना चाहिए. A से B का भी पार्ट मिलना चाहिए, A से C का भी मिलना चाहिए, A से E का भी मिलना चाहिए. इस तरह से E तक जा सकते हैं हम, A से D तक जा सकते हैं. उसी तरह से B से भी हम सारी डायरेक्शन में B से A तक ऐसे जा सकते हैं, ऐसे करके B से C तक जा सकते हैं, B से D तक भी जा सकते हैं, B से E तक, ऐसे हर एक पॉइंट से एक दूसरे के पास जा सकते हैं. सो एज दैट टाइप्स ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ. अब वीकली कनेक्टेड ग्राफ क्या है, देखो यहाँ पे सारे डायरेक्ट A से आप A B C D E तक जा सकते हो, B से भी आप A C D E तक जा सकते हो, C से भी A C D E तक जा सकते हो, D से भी A B C D E तक जा सकते हो, बट आप E से कहीं पे नहीं जा सकते. सो देयर इज नो पाथ फ्रॉम E to B, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वीकली कनेक्टेड ग्राफ. लेकिन अगर कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं जिसमें स्ट्रांगली कनेक्टेड भी नहीं है, वीकली कनेक्टेड भी नहीं है, तो जिसको हम डिसकनेक्टेड ग्राफ कहते हैं. ओके, सो नाउ वी डिस्कस द अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट lecture regarding using disconnected and disconnected graphs. Thank you.